Good afternoon. We have been discussing administrative theory. In the last two lectures, we covered the scientific management school, we covered the classical school, and we also covered the Weberian model of bureaucracy. We had talked in the beginning about the purpose of the organization. As we had discussed, when public administration was emerging, it was an era when when capitalism was emerging. And that is why efficiency, output, productivity were the major concerns. Another concern was to gain respectability for the discipline, and for that you needed to make it scientific. With that purpose in mind, the two purposes, maximum efficiency and scientificity, most of the earlier writers, earlier theorists talked about principles of administration, structure. They wanted to create a system in which everything was predetermined. If an organization is structured on the basis of these principles, it's going to deliver. If administration is done according to these principles, it will deliver. And what is delivery? Delivery is maximum output, maximization. But we had discussed that there are scholars who do not agree with this proposition, They believe that efficiency is only one aspect of the purpose of the organization. So they instead talk about effectiveness. An organization needs to be effective. While the task, the objective, the goals have to be achieved in the most efficient manner, concentration on task only will not help. You need to understand that human beings are not machines. Human beings have their own thought processes, their own mental abilities, their sense of responsibility and initiative. And unless this is considered important, the maximum, the best out of these human beings will not come out. And so the slightly later scholars tried to look at this human aspect of organization. And in this respect, one of the pioneers, actually the pioneer, was Elton Mayo. Elton Mayo was from Harvard. He and his team, they conducted a research spanning over 5 years at Hawthorne and came up with a theory which is known as the human relations theory of administration. Now, there are others also, as we discussed earlier, जिनको ये विश्वास रहा कि ह्यूमन बीइंग्स को ह्यूमन बीइंग्स की तरह ट्रीट करना चाहिए, मशीन की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए. और जितने इसके बाद से जितने बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिसमें रॉबर्ट मर्टन हैं, कीथ डेविस हैं, मैस्लो हैं, हर्जबर्ग हैं, अर्गायरिस हैं, चेस्टर बर्नार्ड हैं, साइमन हैं, जिनके बारे में हम बाद में कभी और भी बातचीत करेंगे डिटेल्स में. ये सारे लोग वो हैं जिनको ये एहसास था कि केवल प्रिंसिपल्स, केवल स्ट्रक्चर, केवल नियम कानून पर अगर हम चलेंगे
तो बहुत इससे इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता है। थोड़े समय के लिए हो सकता है प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, लेकिन लॉन्गर रन में सस्टेन करने के लिए ज़रूरी है कि जो ह्यूमन एस्पेक्ट है उसको समझा जाए और उसके हिसाब से तकनीकें विकसित की जाए। तो एक तरफ जो क्लासिकल स्कूल था, साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल था या वेबेरियन मॉडल था, वो किस पर एम्फेसिस दे रहा था? स्ट्रक्चर पर और प्रिंसिपल्स पर, रूल्स एंड रेगुलेशंस पर। लेकिन जब हम ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच की बात करते हैं तो ये किस पर एम्फेसिस दे रहे हैं? ह्यूमन बीइंग्स पर, साइकोलॉजिकल मोटिवेशन पर। एक बड़ी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है इसमें कि ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट ओनली इकोनॉमिक बीइंग्स, दे आर ऑल्सो सोशल बीइंग्स। और इसलिए यहाँ पर साइकोलॉजिकल मोटिवेशन की बात आती है, इनफॉर्मल ग्रुप बिहेवियर पर इनका जोर आता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कि आपस में जो रिश्ते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे। तो इन चीज़ों को जब आप समझेंगे तो बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव बना पाएंगे। इनकी मान्यता ये रही कि कोई भी मैनेजमेंट का अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन आपको सोशल साइकोलॉजी में ढूंढना पड़ेगा, सामाजिक मनोविज्ञान में। जो एम्फेसिस इनका है वो है थियरीज ऑफ परसेप्शन पर, थियरीज ऑफ लर्निंग पर, थियरीज ऑफ मोटिवेशन पर, थियरीज ऑफ पर्सनालिटी पर। तो एक बहुत ही व्यापक तरीके से इंडिविजुअल, व्यक्ति के मानसिकता को, उसकी सोच को, उसके थॉट प्रोसेस को समझकर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाए ताकि ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम इफेक्टिव हो सके, इस सोच को हम अभी पढ़ेंगे, अभी समझने की कोशिश करेंगे। जो एक्सपेरिमेंट हुआ हॉथॉर्न में, उस एक्सपेरिमेंट में जो ख़ास बात थी वो थी कि आमतौर पर जब हम ऑब्जेक्टिव रिसर्च करते हैं तो क्वेश्चन एयर छपाते हैं और क्वेश्चन एयर पर जवाब ले लेते हैं यस नो पॉइंट्स 1 2 3 4 5। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। एल्टन मेयो और उनकी टीम ने ओपन एंडेड क्वेश्चंस रखे और डिस्कशंस में ज़्यादा विश्वास रखा, और जो रिस्पोंडेंट्स थे, जो एम्प्लॉयज़ थे, वर्कर्स थे, उनके साथ उनका इंटरव्यू किया। तो इस तरह से इनफॉर्मली किया कि वो अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाएँ, अपने को अपने व्यूज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से सामने लेकर आ सकें। और जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो आमतौर पर पूछे गए थे कि भाई जो सैलरी है, वेजेस हैं, सर्विस कंडीशंस हैं, इन सब का प्रोडक्टिविटी से कैसे ये जुड़े हुए हैं। तो इन बातों पर रिसर्च हुआ और जो फाइंडिंग्स थे वो बड़े इंटरेस्टिंग थे। पहली फाइंडिंग ये थी कि जब सैलरी या वेजेस बढ़ाए गए तो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, लेकिन एक लेवल पर आने के बाद रुक गई। अब उसके आगे प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी। अब यहाँ पर देखिए, टेलर, अगर आपको याद हो साइंटिफिक मैनेजमेंट जब हम पढ़ रहे थे, टेलर ने कहा था कि जब आप हायर वेजेस देंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट की शेयरिंग होगी, वेजेस फिर बढ़ेंगे और वो वर्कर्स और मोटिवेटेड होंगे और ज़्यादा काम करने के लिए। तो जब आप इसको प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट और सैलरी के ऊपर सारा कुछ डिपेंड कर रहा था टेलरिज्म में। लेकिन जब हम यहाँ पर क्या पा रहे हैं कि सैलरी बढ़ने से भी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी। सो एक टेलर का एक डिक्टम फॉल्सिफाइड हो जाता है। फिर दूसरी फाइंडिंग आई कि वर्किंग कंडीशन को सुधारने का कि इसको ठीक किया जाए। तो जब उसको ठीक किया गया, उसको बेहतर बनाया गया, तो प्रोडक्टिविटी फिर बढ़ी, लेकिन थोड़े समय तक ही बढ़ी, उसके बाद फिर वो स्टैग्नेट कर गई। यहाँ पर फिर से टेलर का एक जो प्रोपोजिशन था वो फॉल्सिफाइड होता है, जो उन्होंने कहा कि अगर वर्किंग कंडीशन हम बेहतर बनाएंगे तो वर्कर्स ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे काम करने के लिए। तो इनिशियली तो हुआ, लेकिन थोड़े समय के बाद रुक गया। तीसरी जो फाइंडिंग है, जो बहुत सिग्निफिकेंट है ह्यूमन रिलेशन स्कूल के लिए,
वो ये है कि प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा अफेक्टेड किस बात से हो रही है। तो इन्होंने पाया कि वो हो रही है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आमतौर पर जब हम पहले बात कर रहे थे क्लासिकल स्कूल की और वेबर की, और तो वहाँ पर रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप है, हियरार्की, सबऑर्डिनेट है, सुपीरियर है, सुपरवाइज़र है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, यूनिटी ऑफ कमांड है, इस तरह से कोऑर्डिनेशन के लिए अलग अलग तकनीकें थी। लेकिन यहाँ पर हम क्या, ये मेयो ने क्या पाया कि इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप है वो प्रोडक्टिविटी को डिफाइन कर रहा है, वो प्रोडक्टिविटी को कि कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए वो स्थापित कर रहा है। प्रोडक्शन गोल्स कितना होना चाहिए और कोड ऑफ कंडक्ट कैसे काम करना चाहिए, कि इसको ऑर्गेनाइजेशन के नियम कानून स्थापित नहीं कर पा रहे थे, बल्कि जो सोशल ग्रुप्स थे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो डिसाइड कर रहे थे। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एक फाइंडिंग है जिस पर आगे चलकर बहुत विवाद हुआ है। बहुत सारे लोगों ने इसके पक्ष में, बहुत सारे लोगों ने इसके विपक्ष में तर्क लिख रखे हैं, जिस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन किसी संगठन के अंदर सामाजिक समूह हैं, वो समूह डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्टिविटी कितनी होनी चाहिए, प्रोडक्शन का हमारा गोल कितना, लक्ष्य हमारा क्या होना चाहिए और हमें कैसे काम करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के अपने लक्ष्य हैं, ऑर्गेनाइजेशन की अपनी प्रणाली है, प्रक्रियाएं हैं, लेकिन जो सामाजिक समूह हैं वो ज़्यादा डिसिसिव हैं, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं इस मामले में। और यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट एक कुछ टर्म्स लेकर मेयो आते हैं। कहते हैं कि ये जो ग्रुप्स हैं, ये जो समूह हैं, ये निर्धारित करते हैं कि भाई क्या कितना हमारा गोल क्या होगा, लक्ष्य क्या होगा और हम कैसे काम करेंगे। और इस दौरान वो ये भी आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा ऐसा समूह में व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, उसको डिस्करेज करिए। कौन ऐसा है जो बहुत कम काम कर रहा है, उसको डिस्करेज करिए। और कौन ऐसा है जो ग्रुप के जो सदस्य हैं उनके बारे में अनफेवरेबल इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है हायर अथॉरिटीज़ को। तो जो पहला है, जो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, उसका नाम दिया रेट बस्टर। रेट बस्टर जो बहुत कम काम कर रहा है उसको नाम दिया चिसेलर, और जो पास ऑन कर रहा है अनफेवरेबल इंफॉर्मेशन उसका नाम दिया स्क्वीलर। अब है कि जो बहुत ज़्यादा काम करता है उसको क्यों डिस्करेज किया जा रहा है? क्योंकि समूह को भय है कि अगर हम टारगेट को बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे या बहुत टारगेट से ज़्यादा अचीव कर लेंगे तो कुछ लोगों को रिट्रेंच कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा नौकरी से। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उस गोल को ध्यान में रखते हुए आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया। अगर बहुत ज़्यादा काम करेंगे तो कुछ साथियों को हो सकता है उनकी छुट्टी हो जाए, या आगे चल करके अगर एक बार आपने लक्ष्य को एक्सीड कर दिया तो अगली बार लक्ष्य ऊपर वाला सेट होगा और फिर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कोई भी कारण हो, समूह डिस्करेज करता है बहुत ज़्यादा काम करने वाले को। जो बहुत कम काम करता है उसको क्यों डिस्करेज करते हैं? क्योंकि इससे वेजेस कटने की, क्योंकि अगर आप लक्ष्य नहीं प्राप्त करेंगे तो पेनल्टी हो सकती है, वेजेस कट हो सकते हैं। तो जो भी रीज़न हो इसके कारण समूह उसको भी डिस्करेज करता है कि एक ऑप्टिमम लेवल हमने डिसाइड किया है, आप सबको इतना काम करना है। और जो अनफेवरेबल इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है, ये तो आमतौर पर हर आदमी समझ सकता है कि समूह इस तरह के लोगों को नहीं एक्सेप्ट कर सकता। अगली जो फाइंडिंग है वो है कि प्रोडक्टिविटी कब बढ़ती है? जब ये जो सामाजिक समूह हैं संगठन के अंदर इनको ये लगता है कि संगठन का, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है या गोल्स हैं, लक्ष्य, वो समूह के लक्ष्यों के साथ मैच करते हैं तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन यदि
सामाजिक समूह जो हैं अंदर में, उनको ये लगता है कि संगठन का, ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य उनके हितों के खिलाफ है, तो प्रोडक्टिविटी निचले स्तर पर पहुंचेगी, वहीं रहेगी, निचले स्तर पर रहेगी। यानी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसके साथ जो वर्कर है, जो समूह हैं छोटे छोटे, ये समूह अगर आइडेंटिफाई करते हैं उन गोल्स के साथ, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, उनको लगेगा कि ये हमारे हितों के खिलाफ है, तो प्रोडक्टिविटी निचले लेवल पे रहेगी, बस मिनिमम बेसिक पर रहेगी। अगली जो फाइंडिंग है वो है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है जब वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को इम्पॉर्टेंट फील कराया जाता है। जैसे जब वहाँ एक्सपेरिमेंट हुए हॉथॉर्न में, तो जो ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट था, तो वहाँ पर कुछ लोगों को सिलेक्ट किया गया जिनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करना था। अब ये जो कुछ लोग सिलेक्ट हुए, इनको एहसास हुआ कि दे आर इंपॉर्टेंट, एंड बिकॉज ऑफ दैट फीलिंग ऑफ बीइंग इंपॉर्टेंट दे वर्कड मोर एंड सो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड। तो जब आप वर्कर को, एम्प्लॉय को इंपॉर्टेंट फील कराते हैं तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अगली जो फाइंडिंग है कि हर संगठन के अपने फिक्स्ड रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स और संरचनात्मक विशेषताएं, स्ट्रक्चरल स्पेसिफिसिटीज होती हैं, जिनके अनुसार कामकाज होता है। जैसे हमने पिछले जो स्कॉलर्स के बारे में पढ़ा कि उनका कहना था ये सारी चीज़ें अगर ठीक हैं, वेबर ने कहा कि अगर ये सारा इस तरह से है तो ये ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट एफिशिएंट होगा। तो हर संगठन कोशिश करता है कि उसके नियम, कानून, प्रक्रियाएं और संरचनात्मक विशेषताएं एकदम इंटैक्ट हों और उसके हिसाब से सारे कामकाज हों। लेकिन वास्तविकता यह है कि हर जगह इससे डेविएशंस होते हैं, हर जगह डेविएशंस होते हैं इनफॉर्मली, अनौपचारिक रूप से। और ये जो डेविएशंस हैं, इनको मेयो नाम देते हैं इनफॉर्मल ओवरलेज। इनफॉर्मल ओवरलेज कुछ के बारे में बातचीत भी करते हैं। कहते हैं पहला जो है वो है सोशियोमेट्रिक ओवरले। सोशियोमेट्रिक ओवरले, इसका मतलब क्या है कि कहते हैं कि इंसान, ह्यूमन बीइंग्स नेचुरली कुछ लोगों के प्रति अट्रैक्टेड होते हैं और कुछ लोगों से एक रिपल्शन महसूस करते हैं। जिन लोगों से एफिनिटी या अट्रैक्शन होती है, उनके साथ जब वो काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर काम करेंगे, और जब जिनसे रिपल्शन है, उनके साथ बहुत काम करना उनको पसंद नहीं आएगा। तो ये जो सोशियोमेट्रिक ओवरले है वो क्या है कि आप चाहे स्ट्रक्चर में सबऑर्डिनेट और सुपीरियर का रिलेशनशिप रखा हुआ है, लेकिन जो एम्प्लॉय है, जो वर्कर है, वो किससे रिलेट करेगा, किससे नहीं करेगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किसके प्रति एफिनिटी या अट्रैक्शन महसूस कर रहा है और किसके प्रति रिपल्सन महसूस कर रहा है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन में जो हियरार्किकल रिलेशनशिप है, उससे ये डिपार्चर है। दूसरा जो है वो है फंक्शनल ओवरले। फंक्शनल ओवरले का मतलब होता है कि आमतौर पे जैसे जो पिछले स्कॉलर्स जो हमने पढ़े, उनमें हमने देखा कि सुपरवाइज़र है वो अपने सबऑर्डिनेट को गाइड करेगा। फंक्शनल फोरमैन का कॉन्सेप्ट था, टेलर का, और जो वर्कर है वो उससे गाइडेंस लेगा। लेकिन मेयो कहते हैं कि एम्प्लॉयज़ में ये टेंडेंसी होती है कि वो स्ट्रक्चर से बाहर जाकर, फॉर्मल जो स्ट्रक्चर है उसके बियॉन्ड जाकर किसी से मशवरा ले लें, गाइडेंस ले लें। तो यानी सबऑर्डिनेट और सुपरवाइज़र का जो रिश्ता है
फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो बड़ा महत्वपूर्ण एक कैरेक्टरिस्टिक है, उससे ये डेविएशन है। तीसरा जो है वो है डिसीजन ओवरले। इसका मतलब है कि जब कोई निर्णय लिया जाता है, जब डिसीजन मेकिंग पे हर्बर्ट साइमन को हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन कोई भी निर्णय जब लिया जाता है तो आम तौर पर माना यह जाता है, जैसे जब पुराने मॉडल्स हम अगर देखें क्लासिकल स्कूल के या वेबेरियन मॉडल, कि इंफॉर्मेशन नीचे से ऊपर फ्लो करता है, ऊपर से नीचे फ्लो करता है। वो कैसे करता है? लेवल वाइज करता है। हियरार्किकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक लेवल दूसरे को दूसरे, और इस तरह से इंफॉर्मेशन फ्लो करता है। लेकिन जो निर्णय ऊपर लिया जाता है, उस निर्णय के लिए जो इंफॉर्मेशन फ्लो आया है वो एक स्ट्रक्चर में आया। लेकिन ये मेयो कहते हैं यहाँ पर कि डिसीजन ओवरले में, कि निर्णय लेते समय जो ये फॉर्मल चैनल्स हैं उनको कई बार बाईपास कर दिया जाता है। आप एक उदाहरण अगर लेना चाहें हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, तो जब प्रधानमंत्री हमारे थे स्वर्गीय राजीव गांधी, उन्होंने हिंदुस्तान के सारे सरपंचों को दिल्ली बुलाया था, 1985 की बात है, और सीधे कि गांव का विकास कैसे हो उस पर बातचीत करके, और यहाँ पर हम निर्णय लेंगे केंद्र में। अब इन्होंने क्या किया कि जो रूरल डेवलपमेंट या पंचायती राज से जुड़ा हुआ मंत्रालय था वो बाईपास्ड हुआ, स्टेट गवर्नमेंट बाईपास्ड, स्टेट गवर्नमेंट के वो मंत्री बाईपास्ड, ज़िला परिषद बाईपास्ड, ये सबको बाईपास करके सीधा सरपंच से जुड़े, और उसके आधार पर उन्होंने अपनी सोच विकसित की। कोई निर्णय बाद में जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात आई तो वो वहाँ से उन्होंने शायद कुछ लिया। तो इस तरह से कई बार ऑर्गेनाइजेशंस में जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो बाईपास करके भी निर्णय ले सकता है, या जो बीच में भी हायर लेवल पे जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो कई बार फॉर्मल चैनल्स को बाईपास करके निर्णय ले लेते हैं। पावर ओवरले, पावर ओवरले का मतलब है कि पावर की बात जब यहाँ पे है, बेसिकली अथॉरिटी, कि हर जो पोजीशन है उसके पास एक अथॉरिटी है, और जो उसका सबऑर्डिनेट है वो सबऑर्डिनेट उसको ओबे करता है। जो हायर अथॉरिटी है, उसका जो हायर अथॉरिटी है उसको ये ओबे करेगा, वो उसको कमांड करेगा। सो दिस इज द हियरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि जो निचले लेवल पर एम्प्लॉय है उसका पर्सनल अगर रिलेशनशिप हायर अथॉरिटी के साथ है तो अपने इमीडिएट जो बॉसेस हैं उनको वो बाईपास कर देता है। कई अखबारों में कुछ रिपोर्ट्स या कुछ आर्टिकल्स जो मैंने पढ़े तो उसमें कुछ राज्यों के बारे में ये था कि जो एसएचओ होता है, एसएचओ इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी और इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू से। तो कहीं कहीं ऐसा हुआ कि जो चीफ मिनिस्टर या जो सरकार, राज्य सरकार स्ट्रेट एसएचओ से कांटेक्ट में रही, एंड बीच में जो है एसएचओ के ऊपर डीएसपी हैं, एसपी हैं, दे आर बाईपास्ड। तो पावर ओवरले का मतलब हुआ कि जो निचले लेवल का भी व्यक्ति है वो ज़्यादा पावर एंजॉय कर लेगा अपने सुपीरियर से बिकॉज ऑफ हिज रिलेशनशिप विद द हायर अथॉरिटीज। और पांचवा है कम्युनिकेशन ओवरले, संचार। संचार का जैसे अभी हमने बात की कि हर ऑर्गेनाइजेशन में संचार की एक व्यवस्था है कि कैसे नीचे से ऊपर तक रिपोर्ट जाएगी, कैसे ऊपर से नीचे तक डायरेक्शन आएगा। लेकिन हमेशा ये बॉटम से टॉप और टॉप से बॉटम एक स्ट्रक्चर के माध्यम से जाए ज़रूरी नहीं होता है। और आज के समय में लगभग हर जगह जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, वो अपने उनके चैनल्स होते हैं ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एवरीवेयर। तो इसको ये जो हियरार्किकल स्ट्रक्चर में जो फ्लो होता है उससे हट करके कम्युनिकेशन की बात होती है। अगली जो फाइंडिंग है
वो ये है कि जब हम औपचारिक संगठनों की बात करते हैं तो औपचारिक संगठनों में फिक्स्ड रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं और एक उत्साह, एक ज़ील है टू मैकेनाइज द होल प्रोसेस, कि एकदम साइंटिफिक बनाना है हमको, अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाए। मैकेनाइज द होल प्रोसेस। इसके कारण क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है, जो वर्कर है, वो इंटरेस्ट लूज कर जाता है। अरे यार, जब सब कुछ सिस्टम ही चलाएगा तो हमारी क्या, वो इनिशिएटिव जो उसमें कैपेबिलिटीज हैं भी तो भी वो इनिशिएटिव नहीं लेगा, वो इंटरेस्ट नहीं लेगा। और जब ऐसी स्थिति आएगी कि जब वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, इनिशिएटिव नहीं ले रहा है, ही इज जस्ट बिकमिंग एन आइडल कॉग इन द व्हील, कि चक्का घूमेगा तो हम भी घूम जाएंगे, तो ऐसे स्थिति में जो कॉन्सेप्ट इमर्ज करता है उसको मेयो कहते हैं कि दे स्टार्ट ट्रीटिंग द वर्क एज मेयरली इम्पर्सनल एक्सचेंज ऑफ मनी फॉर लेबर। अपने काम को वो क्या देख रहे हैं कि बस काम करेंगे, पैसा ले लेंगे, इम्पर्सनल, कोई उससे लगाव नहीं। नेक्स्ट फाइंडिंग, गुड सैलरीज एंड वर्किंग कंडीशंस सेटिस्फाई द साइकोलॉजिकल एंड सिक्योरिटी नीड्स। आपको अच्छी सैलरी मिल रही है और वर्किंग कंडीशन अच्छा है तो आपका फिजियोलॉजिकल और सिक्योरिटी नीड्स सेटिस्फाइड होता है। लेकिन जो हायर नीड्स हैं, मैस्लो का सिद्धांत है, कभी उसके ऊपर बातचीत होगी। मैस्लो का सिद्धांत है नीड हियरार्की का, और वो कहते हैं कि नीड्स जो हैं वो हियरार्किकल हैं। नीचे वाले नीड्स जब ये फिजियोलॉजिकल एंड सिक्योरिटी, ये नीड्स जब सेटिस्फाइड हो जाते हैं तब आप ऊपर के नीड्स के प्रति जागरूक होते हैं, और जब वो नीड्स सेटिस्फाइड होते हैं तब मोटिवेशन एक्चुअली सही तरीके से जो इंडिविजुअल है वो मोटिवेटेड फील करता है। जो हायर नीड्स हैं वो क्या हैं? सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। when you feel important, when you feel that you are doing something worthwhile. तो जब ये हायर नीड्स सेटिस्फाइड होते हैं तब अपना बेस्ट दे पाता है वर्कर। नेक्स्ट जो फाइंडिंग है वो है लैक ऑफ एवेन्यूज एंड अपॉर्चुनिटीज टू सेटिस्फाई हायर नीड्स लीड्स टू टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, एक फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस एंड अ फीलिंग ऑफ बीइंग अनइम्पॉर्टेंट। कि जब हम कोई जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है, फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, उसमें अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसमें वो स्कोप नहीं है कि आप अपने हायर नीड्स को सेटिस्फाई कर पाइए। आपको तो बस वो ऑर्डर आया, आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, एक फाइल मूव की, उस पर आपने अपना कमेंट लिया, ऊपर कर दिया। कुछ हमने हासिल किया, कुछ हमने क्रिएट किया, वो जो सेटिस्फैक्शन होता है तब आप ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं कि कुछ और करें। लेकिन वो जब नहीं मिलता है तो एक एपैथी डेवलप कर जाती है, और ठीक है यार, सब चल रहा है। और उससे के कारण जो टेंशन है, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो एंजाइटी है, और जो फीलिंग ऑफ एक कन्फ्यूजन और डिटैचमेंट की फीलिंग आती है, इन सब को से जो सिचुएशन सामने आता है उसको मेयो कहते हैं। उसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं, एनोमिक सिचुएशन, जिसमें वर्कर जो है वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड, हेल्पलेस, अनइम्पॉर्टेंट, कंफ्यूज्ड, डिटैच्ड फील कर रहा है, विच इज़ नॉट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जब वो मोटिवेटेड होगा तभी वो अपना बेस्ट देगा और तभी ऑर्गेनाइजेशन का भला होगा। मेयो कहते हैं कि जो एनोमिक कंडीशंस हैं ये ज़्यादातर उन इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में पाए जाते हैं जहां जो मैनेजमेंट है
वो वर्कर्स के प्रति, एम्प्लॉयज़ के प्रति एक निगेटिव अप्रोच, एक निगेटिव अजम्पशन से ग्रस्त होता है। मैनेजमेंट को ये लगता है कि जो वर्कर्स हैं ये बस अपने सैलरी से, अपने स्वार्थ से ग्रस्त हैं, इनको अपना उसके बियॉन्ड ये सोच ही नहीं सकते, उसके बियॉन्ड इनमें कोई काबिलियत नहीं है। और ये सच्चाई आज भी है। आज भी बहुत सारे जगहों पर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, उनको ये लगता है कि वर्कर जो हैं वर्थलेस हैं, कुछ नहीं है, इनको बस अपनी सैलरी से मतलब है, कोई काम वाम से मतलब नहीं है। तो इस तरह की जो सोच होती है जहाँ, वहाँ पर मैनेजमेंट वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं क्रिएट कर पाता है वर्कर्स के लिए, जहाँ वर्कर रिलेट कर पाए, वर्कर्स अपने हायर नीड्स को सेटिस्फाई कर पाएँ। और जब वो नहीं करते हैं तो एनोमिक सिचुएशन डेवलप होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को, उसकी इफेक्टिवनेस को ख़त्म कर देता है, बहुत कम कर देता है। तो ये जो फाइंडिंग्स हैं, ये फाइंडिंग्स ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच को डिफाइन करते हैं। और कुल मिलाकर जैसा इमर्ज करता है वो ये कि किसी संगठन को अगर इफेक्टिव बनाना है तो ह्यूमन रिलेशंस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे, अगर निगेटिव अजम्पशन से ग्रस्त होकर के और स्ट्रक्चर और रूल्स रेगुलेशन से गाइडेड होकर चलेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव नहीं होगा, आपका प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। अब आते हैं कि जब भाई इतना बड़ा एक डिपार्चर कोई लेकर आया तो नेचुरली क्रिटिसिज्म्स भी आएंगे, क्योंकि अभी तक जो इनके पहले के स्कॉलर्स थे वो बिल्कुल अलग बात कर रहे थे और ये बिल्कुल अलग बात करने लग गए। तो क्रिटिसिज्म्स क्या हैं? पहला क्रिटिसिज्म आता है लॉरेन बैरेट्स का। और भी लोग हैं जो इस तरह का क्रिटिसिज्म करते हैं, लॉरेन बैरेट्स एक हैं उसमें। ये कहते हैं कि मेयो जो हैं वो एंटी यूनियन एंड प्रो मैनेजमेंट हैं। क्या मतलब है? ये कहते हैं कि ये क्या चाह रहे हैं मेयो, ये चाह रहे हैं कि यूनियंस को सब्स्टिट्यूट कर दें बाय ह्यूमन रिलेशन ओरिएंटेड मैनेजमेंट। कि भाई ये सजेस्ट तो यही कर रहे हैं ना कि मैनेजमेंट को अपना निगेटिव अजम्पशन छोड़ देना चाहिए, उनको सोशल ग्रुप्स को और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को और ओवरलेज को समझ करके उसके हिसाब से मैनेजमेंट करना चाहिए। तो वो एक ऐसा मैनेजमेंट टेक्निक दे रहे हैं जो ह्यूमन रिलेशन ओरिएंटेड कहा जा सकता है और जिसके कारण कोई टेंशन की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। जब टेंशन की गुंजाइश नहीं है तो यूनियन की ज़रूरत नहीं है। तो ये यूनियन को रिप्लेस कर रहे हैं बाय अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैनेजमेंट। जबकि इनको ये जो क्रिटिसिज्म है वो कहते हैं कि दे डू नॉट, ये मेयो और इनके साथी को समझ में नहीं आती है बात कि ett फ्री और डेमोक्रेटिक सोसाइटी में यूनियन का क्या रोल होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या चीज़ है। इसी संदर्भ में एक और कुछ और जो स्कॉलर्स हैं, डेनियल सेल हैं, बेंडिक्स हैं, फिशर हैं, इन लोगों ने एक और बात इसमें जोड़ी। कहा कि मेयो क्या कोशिश कर रहे हैं कि एक टेंशन फ्री सोसाइटी बना दें, ऑर्गेनाइजेशन में टेंशन रहे नहीं। कहते हैं कि ये यूटोपियन आइडिया है, दिस इज नॉट पॉसिबल। जब कभी भी कोई भी ह्यूमन सिचुएशन होगा उसमें टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल है। तो स्कॉलर्स को चाहिए, जो ईमानदार स्कॉलर्स हैं उनको चाहिए कि इन कॉन्फ्लिक्ट्स, इन टेंशन्स का रेजोल्यूशन कैसे हो उसके तरीके ईजाद करें, न कि ये यूटोपियन जो आइडियल्स हैं कि भाई हम टेंशन फ्री सोसाइटी बना देंगे। ये यूटोपियन है जो पॉसिबल नहीं है। एक और स्कॉलर हैं कैरी। कैरी कहते हैं कि ये हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो वर्थलेस थे, किसी काम के नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि ये बहुत ही छोटे सैंपल साइज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। जैसे एक एक्सपेरिमेंट में 5-6 लड़कियां थीं
वो भी लड़कियां वो थी जो सडनली अनइम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट हो गई, क्योंकि वो पूरे में से उनको सिलेक्ट किया गया तो वो दे फेल्ट इम्पॉर्टेंट, और इसलिए जो रिस्पॉन्सेज उनके हैं उनको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी जा सकती। कहा कि ये इनका मेथोडोलॉजी सही नहीं था, इसलिए ये वर्थलेस एक्सपेरिमेंट है। अगला जो क्रिटिसिज्म है वो है पीटर ड्रकर का। पीटर ड्रकर कहते हैं कि हार्वर्ड स्कूल जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पर बहुत ज़्यादा जब एम्फेसिस दे रहा है, उस समय वो निग्लेक्ट कर रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन का एक इकोनॉमिक डायमेंशन भी होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका पर्पस होता है, गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन का जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको निग्लेक्ट करके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को ओवर एम्फेसाइज कर रहे हैं। उसका तो ये जो कहें कि ये इसके कारण क्या होता है कि पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ही निग्लेक्टेड हो जाता है। तो किस तरह की थियरी आप दे रहे हैं? लेकिन जितने भी क्रिटिसिज्म्स हैं, इनके बावजूद हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स, उसकी फाइंडिंग्स और मेयो की जो थियरी है, जो उन्होंने जो चीज़ें रखी सामने, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक मजबूत रिस्पेक्टेबल डिसिप्लिन के रूप में स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। किसी स्कॉलर ने लिखा है कि एल्टन मेयो वॉज अ बिहेवियरलिस्ट एट अ टाइम व्हेन द टर्म बिहेवियरलिज्म वॉज नॉट पॉपुलर एट ऑल। जब बिहेवियरलिज्म की कोई बात भी नहीं करता था, उस समय ये बिहेवियरलिस्ट थे। और एक और बात है जिसके लिए इनको क्रेडिट देना चाहिए कि इनकी सोच, इनकी फिलॉसफी, इनकी थियरी के आने के बाद बहुत सारे जगहों पर मैनेजमेंट ने वर्कर्स को प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजेशन में, और आप कैसे काम करें उसको आप खुद कंट्रोल करें, इस तरह की जो सोच है वो एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट टेक्निक्स के रूप में लाई जाने लगी, ताकि एक पॉजिटिव कोऑपरेशन का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो और ऑर्गेनाइजेशंस ज़्यादा इफेक्टिव बन सकें। तो ये अभी तक हमने जो देखा था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी चल रहा था नियम, कानून और स्ट्रक्चर पर, वहाँ पर सडनली ह्यूमन बीइंग्स बिकम इम्पॉर्टेंट। इस कड़ी में जो अगला कदम आता है वो आता है व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म। लेकिन आज हम बिहेवियरलिज्म की बात नहीं करके एक बिहेवियरलिज्म और ह्यूमन रिलेशंस से मिलता जुलता लेकिन स्लाइटली डिफरेंट एक अप्रोच है जिसको हम सिस्टम्स अप्रोच की बात करते हैं, के रूप में जानते हैं। तो हम सिस्टम्स अप्रोच को आज देखेंगे। सिस्टम क्या है? A system is an entity where everything relates to everything. बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। वो कंपोनेंट्स आपस में भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं और पूरे को भी अफेक्ट करते हैं और पूरे से भी अफेक्टेड होते हैं। सो एवरीथिंग रिलेट्स टू एवरीथिंग एल्स। और ये सब जितने कंपोनेंट्स हैं, ये सब मिलकर एक लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रयास करते हैं। सिस्टम्स अप्रोच हमें ये समझने में मदद करता है कि जब हम शुरू से हम अभी तक जो देख रहे थे कि ऑर्गेनाइजेशन में कई स्तर होते हैं, कई विभागों की बात की गलिक ने कि विभाग क्रिएट कर दिए जाते हैं, सब डिविजन्स क्रिएट किए जाते हैं, तो ये, और फिर कोऑर्डिनेशन की बात। तो ये जितना भी कुछ होता है किसी भी संगठन के अंतर्गत,
वो सब अलग अलग कंपोनेंट के रूप में भी रहते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए भी रहते हैं, अलग अलग भी काम करते हैं, एक दूसरे से जुड़कर भी काम करते हैं, पूरे संगठन का जो लक्ष्य है उससे भी जुड़े होते हैं और अपने अपने इनके लक्ष्य भी होते हैं। तो इन सारी जो विशेष ये जो डायनामिक्स है इसको समझना बहुत आवश्यक है। द टर्म सिस्टम्स थियरी वर्ड जो है ये एक बहुत फेमस बायोलॉजिस्ट हैं लुडविग वैन बर्टलैन्फी, इन्होंने ये टर्म सबसे पहले यूज़ किया। लेकिन नॉर्बर्ट वाइनर was the first who gave a clear idea of organization as a system, कि किसी संगठन को भी एक सिस्टम के रूप में देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। ये कंट्रीब्यूशन नॉर्बर्ट वाइनर का है। अब है कि सिस्टम क्या है, तो सिस्टम मैकेनिकल भी हो सकता है। मैकेनिकल सिस्टम आमतौर पर क्लोज्ड सिस्टम होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव आते हैं, वो स्विचेस आप बना देते हैं और एक सिस्टम आपने बना दिया जिसमें ये दबाएंगे तो ये जल जाएगा, वो वाला दबाएंगे तो वो जलेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये भी एक सिस्टम है जिसमें प्रेडिक्टेबिलिटी है कि ये वाले स्विच से ये लाइट जलेगी, ये वाले स्विच से वो वाली लाइट जलेगी, ये वाले स्विच से एसी चलेगा, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल में कहीं पर कोई कंफ्यूजन होता है तो ये नहीं जलेगा। तो मैकेनिकल सिस्टम क्लोज्ड सिस्टम है, प्रेडिक्टेबल है, प्रिसाइज है। लेकिन दूसरा सिस्टम एक होता है जो ऑर्गेनिक सिस्टम कहलाता है। ये ओपन सिस्टम है। ह्यूमन बॉडी ये भी एक ऑर्गेनिक सिस्टम है। यू कैन सी योर बॉडी एज एन ऑर्गेनिक सिस्टम। इसमें भी कई कंपोनेंट्स हैं। हर कंपोनेंट अपना अपना रोल प्ले कर रहा है। ये ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है बॉडी। जो कंपोनेंट्स हैं वो जब सब सारे कंपोनेंट्स अपना अपना काम सही तरीके से करेंगे तो द बॉडी विल बी कंसिडर्ड टू बी हेल्दी। आँखें भी सही काम कर रही हैं, नाक भी सही काम कर रही है, और हाथ भी, पाँव भी, लिवर भी, किडनी भी, जब सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो उनका अलग अलग काम है, वो सारे काम अपना अपना कर रहे हैं, जब सारे अपना अपना काम अच्छे से कर रहे हैं तो आप एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। किसी में भी कोई समस्या आएगी तो आपका जो हेल्थ है वो अफेक्टेड हो जाता है। लेकिन जो पार्ट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो सही काम करें और कैसे कर रहे हैं उसमें भी ये समझने की ज़रूरत है कि ये एक दूसरे को अफेक्ट भी कर रहे हैं। और एक दूसरे से अफेक्टेड भी हो रहे हैं। कौन सा ऑर्गन किसको क्या सपोर्ट कर रहा है, ये पूरे डायनामिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तभी जो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स इसीलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि किस पार्ट में की क्या एक्टिविटी है और कैसे दूसरे पार्ट को अफेक्ट करता है, एंड सो ऑन। तो जो वेरियस कंपोनेंट्स किसी भी, जैसे और बॉडी है उसी तरह से कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके भी विभिन्न कंपोनेंट्स हैं, वो भी अलग अलग फंक्शन अपना अपना निष्पादित कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन का हेल्थ है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि सब अपना अपना सही से कर रहे हैं और सारे मिलकर के ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात आती है यहाँ पर कि बॉडी कहाँ पर है, एक एनवायरनमेंट में है।
एक वातावरण में है। इसी तरह से संगठन कहाँ है, वो भी एक एनवायरनमेंट में है, एक वातावरण में है। बॉडी एनवायरनमेंट से अफेक्टेड होती है और उसको एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने को एडजस्ट करना पड़ता है। अगर नहीं कर पाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। बाहर ठंड बहुत ज़्यादा है, आपने एडजस्ट नहीं किया, बीमार पड़ गए। बहुत ज़्यादा गर्मी है, आपने एडजस्ट नहीं किया, बीमार पड़ गए। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन को भी अपने एनवायरनमेंट के प्रति सजग रहना होता है, अडाप्ट करना पड़ता है कि जो कंडीशंस में बदलाव आ रहा है उसके हिसाब से हम बदल लें अपने आप को। तो ये जो एबिलिटी है, अडेप्टेबिलिटी की जो एबिलिटी है, ये डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन मैकेनिकल सिस्टम एंड ऑर्गेनिक सिस्टम। मैकेनिकल सिस्टम अपने आप एडजस्ट नहीं कर सकता। अगर 440 वोल्ट आ गया तो उड़ जाएगा, अनलेस यू हैव क्रिएटेड अ स्टेबलाइजिंग मैकेनिज्म। लेकिन बॉडी जो है वो उसमें वो एडजस्ट करने लग जाता है। तो ऑर्गेनिक सिस्टम को एनवायरनमेंट के प्रति अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसको एडजस्ट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। और दूसरी बात कि वो अपने एनवायरनमेंट को अफेक्ट भी करता है। एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से उसको मोल्ड करना है, एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सिस्टम के रूप में जब हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इसके अपने कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स के माध्यम से ये फंक्शन कर रहा है, लेकिन वो एक एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, उस एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट करता है और उससे भी अफेक्टेड होता है। सो ऑर्गेनाइजेशन की जो क्षमता है डिलीवर करने की, वो किस बात पर डिपेंड करेगी कि वो अपने अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको कैसे मैनेज कर रहा है और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे किस तरह से रिलेट कर रहा है। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि जो सिस्टम है वो सिस्टम एक चेन के आधार पर काम करता है। वो चेन क्या है? इनपुट, कन्वर्शन, आउटपुट, फीडबैक, ये चेन है। इनपुट, कन्वर्शन, आउटपुट एंड फीडबैक। आप कोई चीज़ सिस्टम के अंदर आती है, सिस्टम में उसका कन्वर्शन होता है, किसी और चीज़ में वो परिणत होकर के प्रोडक्ट बाहर जाता है, दैट इज़ आउटपुट। और आउटपुट जब बाहर जाता है तो वो एनवायरनमेंट उसको एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। मॉडिफिकेशन के लिए जो भी वहाँ पर बाहर हो रहा है दैट इज़ फीडबैक, जो फिर से वापस सिस्टम में आता है। जब तक ये प्रक्रिया चल रही है तब तक सिस्टम थ्राइव करेगा, अलाइव रहेगा। मिलर एंड राइस ने लिखा कि दीज इंपोर्ट, कन्वर्शन, एक्सपोर्ट प्रोसेसेस आर द वर्क द एंटरप्राइज हैज़ टू डू इफ इट इज़ टू लिव। अगर एंटरप्राइज को जिंदा रहना है तो उसको ये इनपुट, कन्वर्शन, आउटपुट, इंपोर्ट, कन्वर्शन, एक्सपोर्ट जो कहते हैं राइस एंड मिलर, कि ये करना पड़ेगा। आप फिर से एग्जांपल ले सकते हैं बॉडी का, कि हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन, अंदर में वो मेटाबॉलिज्म जो भी होता है, उसके बाद हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड जाता है वातावरण में जहाँ पेड़ उसको लेते हैं और वो ऑक्सीजन वापस देते हैं। उस ऑक्सीजन को फिर हम लेते हैं। तो ये चेन बन गया, इनपुट, कन्वर्शन, आउटपुट, फीडबैक, जो इनपुट के रूप में अंदर आया। इनमें से कहीं पर भी अगर बाधा आ गई, अवरोध आ गया, अगर आपने सांस नहीं लिया, सिस्टम गया। अगर अंदर में मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हुआ, सिस्टम गया। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकला, सिस्टम गया। और निकलने के बाद अगर फीडबैक नहीं आया, फिर प्रॉब्लम। तो इसी तरह से सिस्टम को भी अपने इस चेन को मेंटेन करके रखना चाहिए, रखना पड़ता है अगर उसको जिंदा रहना है। चर्चमैन एक स्कॉलर हैं जिन्होंने 5 बेसिक कंसिडरेशंस की बात की फॉर स्टडिंग अ सिस्टम। एक सिस्टम को समझने के लिए, उसको पढ़ने के लिए 5 बेसिक कंसिडरेशंस हैं। कौन कौन से? कि सबसे पहले ये जानना चाहिए कि सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है।
उसका लक्ष्य क्या है, और मेजर ऑफ परफॉर्मेंस कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो परफॉर्मेंस है उसका मेजर क्या है, ये सबसे पहले जानिए। दूसरा, सिस्टम्स एनवायरनमेंट, सिस्टम का जो परिवेश है उसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप सिस्टम को समझ पाएंगे, सिस्टम के परफॉर्मेंस को समझ पाएंगे। तीसरा, सिस्टम्स रिसोर्सेज, सिस्टम के रिसोर्सेज क्या हैं, उसके किस जो आपके रॉ मटेरियल जिसके आधार पर, चाहे वो मटेरियल हो चाहे वो ह्यूमन हो, जो रिसोर्सेज हैं वो कितने क्या हैं आपके पास। चौथा, सिस्टम्स कंपोनेंट्स, कि कितने तरह के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं सिस्टम के अंदर, और उन सारे कंपोनेंट्स की क्या एक्टिविटीज़ हैं, उनके क्या लक्ष्य हैं, और उनके परफॉर्मेंस को मेजर करने के क्या तरीके हैं, ये जानना पड़ेगा, तब आप सिस्टम को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और पांचवा, सिस्टम्स मैनेजमेंट, कि सिस्टम जो है उसको जब डिलीवर करना है तो मैनेजमेंट की ज़रूरत है। मैनेजमेंट में ख़ास तौर पर क्या ज़रूरी है, ये जानिए कि आपके जो लक्ष्य हैं और जो आपके रिसोर्सेज हैं उनको ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जा रहे हैं कि नहीं। जो निर्णय लिए जा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग है, वो होना चाहिए अपने रिसोर्सेज और लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए। सिस्टम जो है वो 3 मॉडल्स पर बनाया जा सकता है। पहला मॉडल है द एफिशिएंसी मॉडल, दूसरा है द ह्यूमनिस्टिक मॉडल, और तीसरा एंटी प्लानिंग मॉडल। जो एफिशिएंसी मॉडल है ये साइंस, टेक्नोलॉजी, क्वांटिफिकेशन, एनालिसिस आदि का सहारा लेकर वन बेस्ट वे फॉर एवरी फंक्शन की बात करता है, कि आप हर कंपोनेंट के लिए वन बेस्ट वे हम निकाल देंगे और उसके आधार पर चलेगा। ये बहुत टास्क ओरिएंटेशन वाला जो पहले क्लासिकल स्कूल था और वेबेरियन मॉडल था, वहाँ से लेकर के एफिशिएंसी इज़ द की, और यहाँ पर एकदम वो उसको साइंटिफिक बनाने की बात होती है, इसलिए एफिशिएंसी मॉडल। दूसरा जो ह्यूमनिस्टिक मॉडल है वो कहता है कि देयर इज़ मोर टू लाइफ देन मेयर इकोनॉमिक्स, केवल अर्थ नहीं और भी चीज़ें हैं। ये वैल्यूज़ की बात करते हैं, ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात करते हैं, और कहते हैं कि स्ट्रक्चर जो है वो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज ना करे, लेट देयर बी प्रॉपर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। और जो मैनेजमेंट साइंटिस्ट और सिस्टम एनालिस्ट्स हैं उनको कहते हैं ये यूटोपियंस हैं, इनको समझ में नहीं आता है कि मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सिस्टम के अंदर के बीच डिफरेंस है। जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये ऑर्गेनिक सिस्टम हो सकता है, मैकेनिकल सिस्टम बनाने की कोशिश आप कर रहे हैं, वो यूटोपियन है, संभव नहीं है। और एंटी प्लानिंग अप्रोच कहता है कि ये जितने तकनीक वकनीक हैं ये सब अपनी जगह पे हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका जो अपना इतिहास है, उसके जो एक्सपीरियंस है, उसकी जो एबिलिटी है अपनी, जो इंडिजिनस और नेचुरल नेटिव इंटेलिजेंस, उसके आधार पर ज़्यादातर समस्याओं को निपटा लिया जाता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट तकनीकों की ज़रूरत नहीं होती है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एक और बात आती है कि सिस्टम में जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उनको सब सिस्टम कहते हैं। सिस्टम के जो मेजर कंपोनेंट जिनकी बात हम बार बार कर रहे थे उनको सब सिस्टम्स के रूप में देखा गया, और कहा कि जितने भी सब सिस्टम्स हैं ये डिफरेंशिएटेड और इंटीग्रेटेड दोनों रूपों में रहते हैं। डिफरेंशिएटेड मतलब अलग अलग अपना फंक्शन भी कर रहे हैं, लेकिन इंटीग्रेटेड भी हैं एट द सेम टाइम, तभी वो एकीकृत लक्ष्य की प्राप्ति कर पाते हैं। इसमें जो टेक्निकल सब सिस्टम होता है वो मैकेनिकल प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट्स पर कंसंट्रेट करता है। जो साइकोलॉजिकल सब सिस्टम है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और बिहेवियरल पैटर्न की बात करता है, और जो स्ट्रक्चरल सब सिस्टम है वो इन दोनों को लेकर के और डिफाइन करता है जॉब और पोजीशन को, एलोकेशन ऑफ अथॉरिटी को, और फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को।
जो मैनेजमेंट है वो स्ट्रक्चरल सब सिस्टम का पार्ट है। और एक अंतिम बात, इससे पहले कि इसको समाप्त किया जाए, टाइम भी ख़त्म हो रहा है, कि बाउंड्री बहुत इंपॉर्टेंट है सिस्टम को समझने के लिए। क्योंकि पहला कारण इसका ये है कि इनपुट और आउटपुट दोनों बाउंड्री पर होते हैं, इनपुट और आउटपुट दोनों बाउंड्री पर होते हैं। और दूसरा कि कोई भी सिस्टम अगर उसको सरवाइव करना है तो अपना जो एटमॉस्फेयर है उसके चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है उसको समझकर उसके अनुसार उसको अडाप्ट करना पड़ता है। तो बाउंड्री की अगर क्लैरिटी है तभी आपको अपने एनवायरनमेंट के प्रति क्लैरिटी होगी। और दूसरी बात कि जो इंटरनल हेल्थ है ऑर्गेनाइजेशन का वो उसके कंपोनेंट्स के हेल्थ पर, उसके जो सबसिस्टम्स के हेल्थ पर डिपेंड करता है। उसको कैसे आप मैनेज करते हैं, उसको कैसे मॉडरेट करते हैं, ताकि जो थ्रेट्स हैं, जो फियर्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, उनको आप कंट्रोल में रख पाएँ। इसके लिए भी ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपकी बाउंड्री के अंदर क्या है। तो इसलिए बाउंड्री सिस्टम को समझने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और मैं यहीं पे अभी रुक जाता हूँ। थैंक यू। ओके, आपने बताया कि डिफरेंट अप्रोचेज है, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और दूसरे अप्रोचेज। तो इसको भारत जैसे देश में किस तरह अपनाना चाहिए? फंक्शनल अप्रोच ज़्यादा या स्ट्रक्चरल अप्रोच, या क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को मोर इफेक्टिव और मोर वेलफेयर ओरिएंटेड बनाने के लिए? देखिए, आज हमने सिस्टम्स थियरी को इसीलिए लिया, बिहेवियरल के पहले ले लिया इसको। वो इसलिए लिया कि पहले जब हमने क्लासिकल थियरी की बात की, वेबेरियन मॉडल की बात की और साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात की, तो लगा कि जैसे एडमिनिस्ट्रेशन बहुत टेक्निकल इस मामले में हो जाता है कि उसको स्ट्रक्चर, रूल्स, रेगुलेशंस, हियरार्की, कोऑर्डिनेशन, केवल इसी की बात हो रही थी। और ह्यूमन रिलेशन स्कूल ने सामने लेकर के एक बात रखी कि नहीं, हर ऑर्गेनाइजेशन में इंसान है और इंसान जो है उनकी अपनी सोच होती है, उनका थॉट प्रोसेस होता है। अगर उसको आप, उसका मोटिवेशन का एक कारण होता है, उसको अगर आप इग्नोर करिएगा तो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव नहीं होगा। सिस्टम्स थियरी इन दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलता है, क्योंकि जो सब सिस्टम है उसमें टेक्निकल सब सिस्टम भी है जिसमें रूल्स रेगुलेशन हैं, और साइकोलॉजिकल सब सिस्टम भी है जिसमें व्यक्ति की जो विशेषताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए वो सब सिस्टम अपना अपना रोल प्ले करता है। तो निश्चित तौर पे सारे बिंदुओं को ध्यान में देना चाहिए, बिहेवियर को, बिल्कुल, सिस्टम को और ऑर्गेनाइजेशन को, तभी एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है। मित्रों, इन्हीं बातों के साथ आज के व्याख्यान को ही विराम देते हैं। आप सबको धन्यवाद, और आपकी ओर से डॉक्टर मणिभूषण को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरह से और काफ़ी बारीकियाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी बारीकियाँ हैं उसके बारे में बहुत सरल भाषा में और उदाहरण देकर आप लोगों के सामने रखा। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग सब के लिए लाभदायक साबित होगा। इस उम्मीद के साथ आज के व्याख्यान को विराम देते हैं। आप सबको धन्यवाद, और डॉक्टर मणिभूषण को एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।